Hello everyone, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to deal with another lecture on Euler's theorem for the homogeneous function, which is going to very interesting today. So before going to the further study about the Euler's theorem for the homogeneous function, I request each and everyone to subscribe my YouTube channel, like and share the videos among your friends and classmates, and press the bell icon to get the further notification. So come on guys, now we start the session for today video lecture. So I'm going to deal the another lecture on the Euler's theorem. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अनदर लेक्चर, इससे पहले भी मैं 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ. दिस सेशन इज गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर ईच एंड एवरी वन. सो आई रिक्वेस्ट गाइज डोंट स्किप दिस वीडियो. ओके, जस्ट सी अप टू द लास्ट. नाउ वी स्टार्ट Euler's theorem. So first of all, I write here the statement of the Euler's theorem. What do you mean by the Euler's theorem? So for the Euler's theorem, first we consider the statement. Okay, what about the statement? If let me change my pen color. Okay, if u is a function of x and y, okay, is a homogeneous function, is a homogeneous function of x and y, okay, of degree n, of degree n, right? Then what about the Euler's theorem? What does the Euler's theorem says? Then x del u over del x. Del u over del x means partial derivative of u with respect to x, and y del u over del y means partial derivative of u with respect to y. It will be equals to n times u itself. Okay, if the Euler's theorem says. Now come on, we prove it. We try to prove it. What about the solution? बहुत छोटा सा solution है इसका, बहुत ही छोटा सा proof है, interesting proof है. Okay, first of all, since u, which is a function of two independent variable, I have taken the smallest multivalued function into independent variable. Since u is a homogeneous function, right? Then obviously it can be written as u equals to x to the power n and phi y upon x by the definition of the homogeneous functions. So you can see the definition of the homogeneous function in the description box. I will post the links of that videos there. Okay, so if it is a homogeneous function, then it can be written in that form. Now come on, partially differentiate, you can give a number to this equation or this relation. Partially differentiate u with respect to x, okay, with respect to x, then we get, क्या मिलता है भैया हमें? भाई यहाँ पे x के 2 फंक्शन है मेरे पास, एक तो ये रहा और एक x का फंक्शन ये. फाई ऑफ y अपॉन x भी एक x का फंक्शन है अगेन. तो मेरे को यहाँ का प्रोडक्ट रूल लगेगा. ओके, नाउ कम ऑन, डेल u ओवर डेल x पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम उसको. तो पहले मैं करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन. इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन. So n x n minus 1, partially differentiate of x to the power n. Now then phi y upon n as it is. First function, a derivative of the first function, and second function as it is. Then plus as it is of first function and the derivative of the second function. So phi dx y upon x, and then अभी y upon x था ना,
अभी y अपॉन एक्स का आप अलग से भी करेंगे, यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा आपका। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, सो व्हाट अबाउट दिस, नाउ इट विल बी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, देन फाइव वाई अपॉन एक्स एंड देन प्लस sorry minus this plus and this minus is minus x to the power n minus 2 and 5 dx y upon x and then y. Okay, come on, now you can write it as x del u over del x, x की मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप दोनों साइड में, राइट, दोनों साइड में आप x की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास n x to the power n 5 y upon x and then minus x to the power n minus 1, क्योंकि x की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो x minus 1 y and then 5x y upon x. Okay, similarly we will partially differentiate 1 with respect to y. Similarly partially differentiate 1 with respect to y. Okay, so we get del u over del y. Again we apply the first function. There is no need to apply the first function methodology here, because we are given the function is u equals to x to the power n 5 y upon x, और इस बार हम क्या करने वाले हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो भैया ये तो सिंपल मल्टीप्लायर बन के रह जाएगा, तो ये फंक्शन बन के नहीं रहेगा, तो कांस्टेंट है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अभी मेरे को 5 का करना है क्योंकि इसमें y है अंदर, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5x y अपॉन एक्स। फिर से मेरे को क्या करना है, y अपॉन एक्स का विद रेस्पेक्ट टू y करना है, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 1/x, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x टू द पावर n माइनस 1 5 dx y अपॉन x. नाउ कम ऑन, यू कैन rewrite it as multiply by y in both the side, y del u over del y is equals to y x to the power n minus 1 5 dx y अपॉन x. और अभी क्या करना है ना, आपने ये जो रिलेशन है आपके पास, इस रिलेशन को आप सेकंड रिलेशन मान लीजिए और इसको आप कंसीडर कर लें रिलेशन नंबर थर्ड, राइट, इट इज़ योर रिलेशन नंबर थर्ड. नाउ कम ऑन एडिंग बहुत छोटा छोटा सा काम कर रहे हैं आप इसमें, है ना, कुछ बड़ा काम नहीं करेंगे. एडिंग करते हैं हम रिलेशन 2 एंड रिलेशन थर्ड. सो क्या मिलेगा आपको, देखो रिलेशन 2 आपके पास ये x डेल यू ओवर डेल एक्स, रिलेशन है आपके पास थर्ड y डेल यू ओवर डेल वाई. तब जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएंगे और दोनों के राइट हैंड साइड भी प्लस हो जाएंगे. ओके, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू व्हाट अबाउट दैट, डेल यू एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन 5 वाई अपॉन एक्स, right, and then minus y x to the power n minus 1 5 dx y upon x. हमने जो है ना यहाँ पे जो रिलेशन 2 है हमारा, ये हमने यहाँ पे प्रॉपर लिख लिया है, ये रिलेशन 2, दैट्स इट, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है. अभी इसमें रिलेशन थर्ड का जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो भी ऐड कर देते हैं इसमें, y x to the power n minus 1 5 डैश y अपॉन x. तो होगा क्या कि ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचता क्या है यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट x डेल u ओवर डेल x देन प्लस y डेल u ओवर डेल y, ओके, इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n 5 y अपॉन x. ओके, और हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, ये u दिया हुआ है हमारे पास, क्योंकि हमारा फंक्शन होमोजीनियस है तो वो हमने u को इस फॉर्मेट में लिखा हुआ था. दिस इम्प्लाइज दैट x डेल यू ओवर डेल x. बहुत ही छोटा सा काम किया हमने, इसके प्रूफ में कुछ भी बड़ा काम नहीं किया है. एक बार हमने u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू x
और उसमें x की मल्टीप्लाई कर दिए और फिर से हमने उसे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफ्रेंशिएट करा, उसमें y की मल्टीप्लाई कर दिए, दो रिलेशन निकल के आए, दोनों को आपने ऐड कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया और ये आपका प्रूफ हो गया। इतना छोटा सा काम आपने इसमें करना होता है, कुछ भी बड़ा काम नहीं है। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस प्रूफ, है ना। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसी के बेस्ड हम एक नेक्स्ट डिडक्शन करने वाले हैं और ये रिजल्ट हमें क्या कहता है, if u is a homogeneous function of degree n in x and y then you have to prove this, we need to prove this relation। अभी वो जो था भैया सिंगल पार्शियल डिफरेंशिएशन था उसमें, है ना, सिंगल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन था, यहाँ पे हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका आयलर्स थ्योरम इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आपका होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ है ऑफ डिग्री एन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट, बहुत छोटा सा काम है, देखो बिल्कुल माइंड को स्ट्रेसिंग लेना है, जो भी आपका आइलर्स रिजल्ट आता है उसी को फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई। ओके, और यहाँ पे एक टर्म हमारा छूट गया है जो मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे, तो ये एक्चुअली अधूरा रह गया। यहाँ पे सही जो लिखा होगा 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x and del y। okay, it should be the term here। okay, come on, now we start। since it is given that u is equals to f of xy is a function, is a homogeneous function, right, is a homogeneous function in x and y, in x and y of degree n, ये आपको दिया हुआ है ऑफ डिग्री n। ओके, देयरफॉर बाय आयलर्स थ्योरम, भाई अगर वो होमोजीनियस फंक्शन है दिया हुआ है तो आप आयलर्स थ्योरम का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि x डेल यू ओवर डेल x देन प्लस y डेल यू ओवर डेल y, it should be equals to n times u, where n is the degree of the homogeneous function। okay, so now come on, you can give the equation number here 1 as 1। now come on, partially differentiate equation 1 with respect to x, क्योंकि आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में काम करना है। अब आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, आपको सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव चाहिए, तो भैया इसको फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। तो पहले आप पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट किसको करना है भैया, इक्वेशन 1 को करना है। ओके, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट, भैया पहले इस टर्म को देख लो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स के दो फंक्शन बन गए, डेल यू ओवर डेल एक्स भी एक एक्स का फंक्शन है और एक्स भी, तो एक्स का डेरिवेटिव ये बाद में कर लेंगे, पहले एक्स को आप ऐसे रख लें, डेल यू ओवर डेल एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, एंड देन प्लस इसमें बाई पार्ट लगेगा, याद रखना है यहाँ पे बाई पार्ट लगेगा, दो फंक्शन है, एक एक्स और एक ये, तो पहले आपने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा और इसका पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन प्लस अभी एक्स का पार्शियली डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और डेल यू ओवर डेल एक्स आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, राइट। सिमिलरली अभी यहाँ पे y देखो, जब पार्शियली डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आप करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो भैया y आपका ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे बाई पार्ट नहीं लगेगा, इसमें बाई पार्ट नहीं लगाना क्योंकि y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और डेल यू ओवर डेल वाई आपका लिखा जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई, राइट, इज इक्वल्स टू एन यू डेक्स, और इसको भी हाँ आप एक काम कर सकते हैं एन यू डेक्स, तो इसको क्या आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स। ओके, नाउ कम ऑन, तो ये आपके पास एक तरीके से, इसको चलो सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, है ना, एक्स
और डेल यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर, एंड देन प्लस वाई डेल 2u डेल एक्स और डेल वाई। ओके, ये हो गया। और एक काम करो, इस डेल यू और डेल एक्स को भी इधर लिया उठा के आप, तो यहाँ पे आपका ये मिल जाएगा n-1 और डेल यू ओवर डेल एक्स, राइट। इसको एक्सप्रेशन नंबर सेकंड दे लें, इसको आप एक एक्सप्रेशन का नंबर दे लें, है ना, क्योंकि डेल यू ओवर डेल एक्स को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, और फिर आपने डेल यू ओवर डेल एक्स दोनों से कॉमन ले लेना है n-1। तो सिमिलरली ओके, सिमिलरली जो आइलर्स थ्योरम है आपकी, उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। पार्शियली डिफ्रेंशिएट आइलर्स जो रिलेशन है आपका, यानी कि रिलेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू, बहुत छोटा छोटा काम करने वाले हैं गाइस, यहाँ पे हम कुछ भी बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, है ना। अब आइलर्स रिजल्ट आपके पास था एक्स डेल यू, यानी कि पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप विद रेस्पेक्ट टू वाई। किसको कर रहे हैं भैया? 1 को। 1 क्या था आपके पास? एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू एन यू। ओके, सो कम ऑन, व्हाट अबाउट द सिंप्लीफिकेशन? सो पहले देख ले, विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो एक्स को कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो यहाँ पे एक्स आपका कॉन्स्टेंट ए से बाहर आ गया, और डेल स्क्वायर यू डेल वाई और डेल एक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन प्लस ये y के तो फंक्शन मिल गए इस बार, यहाँ पे बाई पार्ट लग जाएगा, पहले फंक्शन आप ऐसे रख लें, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एंड देन प्लस y का हो गया आपके पास 1, और डेल यू ओवर डेल वाई आपके पास एज इट इज़ लिखा गया, और बराबर में आ गया आपके पास क्या? n डेल यू ओवर डेल वाई। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अच्छा लगेगा। x डेल स्क्वायर यू डेल वाई और डेल एक्स, राइट, एंड देन प्लस वाई डेल स्क्वायर यू एंड डेल वाई स्क्वायर। ओके, और डेल यू ओवर डेल वाई इधर ले आएंगे आप फिर से, n-1 डेल यू ओवर डेल वाई। तो ये आपके पास रिलेशन थर्ड हो गया। अभी आपने क्या करना है, पहले रिलेशन को आपने x से मल्टीप्लाई करना है, और ये आइडिया आपके पास कहाँ से आएगा ऐसा करने का? पहले को नहीं, दूसरे वाले रिलेशन को आपने x से मल्टीप्लाई कर लेना है, और तीसरे वाले रिलेशन को आपने y से मल्टीप्लाई कर लेना है। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, और ये आइडिया कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आपने देखो, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर डेल यू और डेल एक्स स्क्वायर लाना है, और वाई स्क्वायर डेल यू स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर लाना है। तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए सेकंड एक्सप्रेशन में आपने एक्स से मल्टीप्लाई करनी है, और वाई स्क्वायर लाने के लिए आपने थर्ड एक्सप्रेशन में वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है। तो ऐसा करने से आपको मिलेगा क्या? एक्स स्क्वायर डेल यू डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एंड देन प्लस एक्स वाई, राइट, एंड डेल यू ओवर डेल यू ओवर, let me check it out first, what about the second? X del square u over del, okay, xy del square u upon del x del y is equals to, what about that? क्या था हमारे पास इधर? अच्छा, अभी हमें इधर ये भी ऐड करना है, देन प्लस व्हाट अबाउट द थर्ड वन? थर्ड वन हो गया आपके पास दिस वन, ओके, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई और डेल एक्स, एंड देन प्लस, अच्छा यहाँ पे y की मल्टीप्लाई करनी है मेथड में, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और जो आपके पास राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है, दोनों रिलेशंस में आपके पास एक्सप्रेशन है n-1, पहले में आपने x से मल्टीप्लाई करी, x डेल यू ओवर डेल एक्स हुआ, दूसरे में आपने किससे मल्टीप्लाई करी? y से मल्टीप्लाई करी, सो ये डेल यू ओवर डेल y हो गया। वेरी गुड। अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं? वी नो दैट इन केस ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन, और आपके पास क्या होगा? x डेल स्क्वायर यू डेल x और डेल y इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू डेल y और डेल x।
ये आपके पास दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा 2 टाइम्स एक्स वाई डेल स्क्वायर यू, क्योंकि ये भी डेल वाई डेल एक्स और डेल वाई बन जाएगा आपके पास, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स और डेल वाई बन जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। एंड देन प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और बराबर साइड में क्या मिल जाएगा आपको, n-1, इसकी वैल्यू क्या होती है एन यू, राइट, बाय द यूलर्स थ्योरम इसकी वैल्यू एन यू होती है। देखो यही हमें प्रूव भी करना था, हैंस प्रूव्ड। हमें क्या करना था, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, देन प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एंड देन प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n-1 इंटू यू। इट वॉज टू प्रूव, ओके, हैंस प्रूव्ड। ये छोटा सा काम आपने करना था, हैंस प्रूव्ड। देखो कुछ भी बड़ा बड़ा काम यहाँ पे हमने नहीं किया है, सब छोटा काम है, पार्शियल डेरिवेटिव का कमाल है ना, और सिंपल से डिफरेंट डेरिवेटिव्स हमने यहाँ पे किए हैं। सो गाइस, I hope you have enjoyed this session. So we will meet in the next session with the next extension on some importance theorem based on the Euler's theorem, okay, and some live application, okay. So keep in touch. So see you in the next video lecture. Thanks for watching my videos. See you in the next video. Thank you very much.